So you have to install two things. First of all, you have to install Node.js. You have to come to this website. When you click on Windows, it will automatically install the LTS version. There is another one which is the current version. There is a difference between the LTS one and the current one. And what is the difference? LTS stands for long time support या long term support. इसका मतलब क्या रहता है कि this is a stable version and it is going to stay here with us for a very long time period. And the current one, it contains all the new features which are coming in the newer versions, but it's not stable. There will be possibility that you might run into sub bug. So always go with the LTS version. तो तुम्हें इस फाइल को इंस्टॉल करना है. And guys, you will get a prompt where you will be asked whether to add this in the CMD or not. You have to click on yes for that option if that option comes up. वरना तुम REPL में नहीं जा पाओगे. REPL क्या होता है कि मैं यहाँ पे नोड टाइप करता हूँ, it takes me to the console of node. मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट का syntax and it will work. You should be able to perform these two options कि तुमने नोड टाइप करा and you are getting this one, this arrow, this angular bracket, and when you type any expression, valid mathematical expression, then it should evaluate. So it will come something like this. So I have already installed it, that is why it is not showing. Then click on finish, press any key, let it run. There are some package managers, अभी बात करेंगे उनकी भी. Chocolatey is one of them. It will help you to install other packages later on. तो basically अभी हो क्या रहा है ना, Chocolatey ही ये सारे packages को install कर रहा है, जो भी बाकी वाले packages ऊपर से इंस्टॉल हो रहे हैं ना सिस्टम में. इन द मीन टाइम जब ये प्रोसेस चल रहा है ना, यू कैन ओपन योर ब्राउजर शेल एंड सर्च फॉर पोस्टमैन, डाउनलोड पोस्टमैन. या यू हैव टू डाउनलोड द एप्लीकेशन. सो लेट बोथ ऑफ दीज थिंग्स रन साइमल्टेनियसली. अगर किसी की दोनों चीजें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं देन इट्स फाइन. अकाउंट क्रिएशन में क्या होगा ना, क्या हेल्प होगी बाद में, इफ यू क्रिएट एन अकाउंट ना, यू कैन सेव एंड शेयर योर API कलेक्शंस विद ईच अदर. जस्ट ओपन द पोस्टमैन एप्लीकेशन, you can put your name, fill these things. You can put student, API documentation, debugging and manual testing, designing and mocking APIs, publishing APIs. These will be the 4 things which we are gonna do. Automated testing and monitoring we are not gonna do. You can skip, you can just continue without a team. So what you can now do is click on the workspaces part. Click on my workspace. Close the window. This one, yeah, overview wala close kar do. Click on new HTTP request. So and now you can click on the collections tab again. Can you click on create collection? जो आ रहा है collections पे. Put any name. Put on stack, something like that. So you are in under this collection now. Click on the APIs part left hand side पे. Collection में आ जाओ. Click on home as well because this is a new interface for me as well. मेरा पहले ऐसे नहीं आता था इंटरफेस बिल्कुल भी. Click on workspaces, select my workspace only. Click on MERN stack window, जहाँ पे MERN stack आ रहा है ना, लेफ्ट साइड पे कलेक्शंस के बिल्कुल साथ. ऐड अ रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट, और जो अनटाइटल्ड रिक्वेस्ट आ रहा है ना राइट साइड पे, बंद कर दो इसे. सो योर पोस्टमैन इज इंस्टॉल्ड, टाइप नोड एंड हिट एंटर. सो नोड इज इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम. प्रेस कंट्रोल सी ट्वाइस. तो देखो मेरी यहाँ पे यार खुद से सिंक कर रहा है अभी मेरे. तो बेसिकली मेरा एक उबंटू का सिस्टम है अलग से. तो ये उबंटू वाले सिस्टम में मैंने जो कलेक्शंस बना रखी थी, विंडोज में बहुत कम यूज करता हूँ, तो विंडोज वाले के साथ वो सिंक में लेके आ रहा था उसे. देयर इज वन वे, ऐसे भी कर सकते हैं. अदरवाइज आई कैन ऑल्सो इम्पोर्ट इट. आई कैन चूज द फाइल और मैं अपने डाउनलोड्स वाले सेक्शन में जाके आई कैन जस्ट डाउनलोड दिस, इम्पोर्ट इट बेसिकली, और ये आ जाएगा यहाँ पे सेम टू सेम फिर से. बट मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है ये बीजक नाम का एक, मैंने नहीं करा. अब इसके अंदर जैसे रिक्वेस्ट आ रही है इस फॉर्म में, क्लिक करते हैं तो अलग फॉर्मेट है थोड़ा. एग्जाम्पल पे भी सेम चीज. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउट्स, एडमिन राउट्स. मेरा यूआई थोड़ा इस तरह का आ रहा है, तुम्हारा यूआई अलग है. जो काम करेंगे वो सेम ही होगा. अगर मान लो सिंपल जाता हूँ nodejs.org पे. सो दिस इज गाइस द मेन वेबसाइट ऑफ Node.js. हम उसी पे थे, हम उसके डाउनलोड वाले सेक्शन में थे. अभी यहाँ पे देखो एक लाइन लिख रखी है, Node.js is a JavaScript runtime built on Chrome V8 JavaScript engine. तो जो क्रोम ब्राउजर है उसके नीचे का जो जावास्क्रिप्ट इंजन है उसका नाम है V8. इसी तरह से जो फायरफॉक्स है, जावास्क्रिप्ट इंजन का नाम है स्पाइडर मंकी. तो इसी तरह से अलग अलग टाइप के तुम्हारे जो है जावास्क्रिप्ट इंजन रहते हैं. V8 एक बहुत पावरफुल जावास्क्रिप्ट का इंजन है. क्यों है पावरफुल वो? क्योंकि एक तो गूगल सपोर्ट कर रहा है उसे, पहली चीज. दूसरी चीज ये कि इसमें बहुत ज्यादा एडवांस्ड गार्बेज कलेक्शन के एल्गोरिथम्स लगा रखे हैं इन्होंने. तीसरी चीज ये है कि इसमें AIML भी लग रखी है, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट डेटा कलेक्शन या स्मार्ट गार्बेज कलेक्शन. वो भी सारी फंक्शनैलिटीज हैं इसमें. सो V8 इंजन इज द कोर ऑफ योर क्रोम ब्राउजर. तो Node.js है क्या? Node.js जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जो कि V8 के ऊपर चल रहा है. क्योंकि ये V8 के ऊपर चल रहा है ना, तो नोड ने क्या कर रखा है कि नोड ने पूरे एनवायरनमेंट को उठा के ब्राउजर से हटा दिया है. नोड ने क्या करा है, एक रैपर क्रिएट कर दिया है.
It created an abstract layer कि भैया देखो ये चीजें हम कर सकते हैं, these are the things that we can do, these are the things that we can perform outside the browser using the same V8 JavaScript engine. अब अबाउट में चलते हैं। तो इन्होंने एक बेसिक एक एग्जांपल दे रखी है, हम भी इसी एग्जांपल को फॉलो करेंगे।